we are going to talk about the challenges which is faced by the students at the stage of mains preparation, so that when you are engaging in this program, you should also have the confidence and clarity that these things or on these aspects we are good to go, we are settled with this. पहले इसलिए प्रैक्टिस नहीं करते क्योंकि कंटेंट ही नहीं था, तो लिखते क्या? फिर जब तक कंटेंट आया तब तक मेंस आ गया, आंसर राइटिंग करनी है, वो भी मैं इतनी ढीठ हूं कि मैं करवा ही दूंगी. इफ यू डोंट हैव द कंटेंट यू विल नेवर फेच मार्क्स. सो द फर्स्ट लेयर इज द कंटेंट. My name is Smriti Shah, and on behalf of Vision IS, I welcome you all to this orientation session of Mains Edge 45. So let me just take you through that what we are going to do today in the orientation session. See, the basic objective is to give you an idea that what is supposed to be done from your end and what you can expect from us, that where the interventions would be made, so that before we start the program on 15th of June, you should have the clarity that how we are engaging in this program, both you and us. Okay. So now in this session A, we are going to talk about the challenges which is faced by the students at the stage of mains preparation, as in writing your mains. Second would be based on our years of experience and going through the topper script as well as the scripts of, unfortunately, those students who have not made it to the list. Finally, what is our observation after so many years of experience? And finally, what would be or in what capacity Mains Edge is going to work for you, so that when you are engaging in this program, you should also have the confidence and clarity that these things or on these aspects we are good to go, we are settled with this. तो वो एक confidence का होना बहुत जरूरी है, and that is why we have organized this brief session. Now, my basic observation, and I have been very vocal about it, that if you want that the chances of your selection is high, that is, there is high probability that we find our name in the list, in the GS4 papers, the minimum score has to be 425. All the 4 papers clubbed together, but the target should be 450 plus. So I'm giving you the minimum threshold. We can't afford to go below 425. Why am I saying this is because optional is very uncertain. No matter how much effort you put in, whether that particular year you would be awarded marks or not, there is no guarantee. So we cannot put all our apples in one basket. We have to make sure that GS may it is minimum 425 plus, but our target should be to go beyond 450. So we have to have that clarity. Now, second thing I had observed after going through all the topper scripts and everything, that content is the necessary condition, but hands down it is not sufficient. क्योंकि अगर content से selection होता हो, तो ऐसे बहुत सारे aspirants हैं who have secured or who would have scored much better than what otherwise they have scored. और content की तो कमी नहीं है. पहले तो मैं फिर भी मान लेती, but after AI's intervention, I do not think that the issue is with content. What I have observed is that there are 4 things where we actually need to work upon. The first thing is, while doing or solving a question, can I look at the question or approach the question from different dimensions? Whether I have that dimensional understanding of the question or not. That is the first thing. Second thing is, let us suppose the question is what happiness means to you. What is the difference between values and ethics? यही questions आ रहे, ठीक है? और whether caste identity is fluid or static, इसी तरह के question आ रहे. Now tell me something, अगर किसी ने basic ethics पढ़ा है या basic society पढ़ी है, मैं मान ही नहीं सकती you don't know the answer to this question. The first thing that you study in ethics is what is values and what are ethics. So you definitely know the answer. But no 2 people will ever secure the same marks. That's because many a times we do have the content, but we do not have the necessary value addition which is required to get that edge over others.
ना हमारे अच्छे एग्जाम्पल्स हैं, ना अच्छी लैंग्वेज है, ना अच्छे कोट्स हैं, नाइदर वी आर मेकिंग जुडिशियल यूज ऑफ डायग्राम्स, फ्लो चार्ट्स. सो नाउ आवर आंसर इज फॉलिंग फ्लैट. It is not that it is wrong, but it is just that it is not up to the expectation of UPSC examiner. Third thing which I have observed in most of the scripts and which I am saying not generally, देखो यार, सिलेक्शन जब तक नहीं होता हमको नहीं पता कौन टॉपर है, वो तो सिलेक्शन के बाद पता चलता है ना. बट स्क्रिप्ट्स तो हम शुरू से ही देखते हैं while evaluating the test series का copies and everything, so we have a vague idea. One thing we have observed, you have the content, but the way you have structured is not answering the demand of the question. आपसे causes पूछे हैं, आप dimensions बता रहे हो. आपसे dimensions पूछे हैं, you're writing implication. आप बोलोगे मैम ये कैसे possible है, ये तो सभी को पता होता. वो 7 minutes में दिमाग काम नहीं करता. And that's the fourth intervention. That even if you have the content, you know how to structure the answer, you have all the necessary value addition, but then there is no guarantee that in those 7-8 minutes you will be able to reproduce the content. And why it happens? Because we don't practice. और उसका रीजन है, पहले इसलिए प्रैक्टिस नहीं करते क्योंकि कंटेंट ही नहीं था, तो लिखते क्या. फिर जब तक कंटेंट आया तब तक मेंस आ गया, तो अब कब लिखें, अब कंटेंट पढ़ें या आंसर राइटिंग करें. तो फिर हम तो सीधे के वैसे भी शेरों ने कभी मुंह धोए, हम सीधे मेंस वाले दिन आंसर लिखेंगे. और उसमें चैलेंज बस एक छोटा है, वो शायद अगर आपने पहले मेंस लिखा होगा तो आइडिया होगा, और जिसने नहीं लिखा है उसको सबसे बात ये समझनी चाहिए, पहले दिन ऐसे लिखना, फिर GS 1 2 पूरी शिद्दत से देना, वहां तक भी किसी तरह गाड़ी खिंचती है. फिर आता है इकोनॉमिक्स का पेपर, जिसमें इकोनॉमिक्स, साइंस एंड टेक, इन्वायरमेंट, वो वैसे ही आपका दिमाग का दही हो चुका होता है. और फिर आता है एथिक्स. तो लोग क्या सोच के एग्जाम में जाते हैं, आई गिव माई बेस्ट फुट फॉरवर्ड, आई राइट द बेस्ट आंसर. एथिक्स के पेपर में मोर देन 50% की हालत ये होती है, ये पेपर कैसे खत्म होगा, ये बस पेपर खत्म हो जाए, एक बार मेरा GS खत्म हो जाए, अब मैं रात में जाके सोऊंगा क्योंकि ऑप्शनल को अभी भी 5 दिन बाकी है. सो दिस इज द अप्रोच ऑन द डे ऑफ एथिक्स पेपर, एंड दैट इज वेयर वी फॉल्टर. कितनी तैयारी के साथ गए थे, क्योंकि एक सिंपल सा लॉजिक है यार कि UPSC आपको सिर्फ उसी पे जज करेगा व्हाट यू हैव रिटन इन द आंसर स्क्रिप्ट. ना एक ज्यादा ना एक कम, उसको नहीं पता हाउ मच एफर्ट यू हैव पुट. दे डोंट नो व्हाट्स देयर इन योर माइंड. इफ इट इज ऑन योर शीट you will get the marks. If it is not on your sheet, you will not get the marks. Is it making sense for everyone? So first and foremost observation is you have to make sure that you are not only focusing on the content part, you are going to focus on the dimensions, you're going to focus on the value addition, you're going to focus on the structuring, and most important, you're going to write the answers. So these are the 4 challenges which most of us face during the mains examination. Is it making clear for everyone? Second thing where I want your attention is that if you have also observed, mains is a 3-layered preparation. पहला layer content है. देखो यार, एक सिंपल सी बात है, मैं जितना भी कह लूँ, बिना कंटेंट के क्या ही वैल्यू एडिशन करोगे. सो कंटेंट इज लाइक साइन क्वा नॉन. इफ यू डोंट हैव द कंटेंट यू विल नेवर फेच मार्क्स. सो द फर्स्ट लेयर इज द कंटेंट. सेकंड लेयर इज आवर वैल्यू addition which we have just talked about, and the third layer would be the structuring and the presentation. Now what we are going to do is we are going to make intervention at all stages. हम blindly assume नहीं करेंगे that you have all the content, but हाँ, basic content we'll discuss and sail through it. So हो सकता है उस पे उतना dictation हम नहीं कराएं, but we will not blindly assume that you have the content, so that content support will also be provided. But our major attention would be on 2 things, that is value addition and answer writing. वैल्यू एडिशन इसलिए क्योंकि हो सकता है आप सबने अपने अपने फाउंडेशंस कर रखे हो. द बेसिक नोट्स आर ऑलरेडी विथ यू. वी आर गोइंग टू ऐड दैट एक्स्ट्रा विच इज रिक्वायर्ड टू राइट अ डिसेंट answer, and in every class we'll make sure that you write in the answer in the class so that you will also get an idea how it is supposed to be done. ठीक है, अब मैं थोड़ा सा अपने एरिया के बारे में बता देती हूँ. आई एम गोइंग टू डील विथ एथिक्स, सोसाइटी, सोशल जस्टिस एंड एसे. From 15th we are starting with ethics, ठीक है, and ethics के साथ we'll introduce one more subject. So this is how we are going to proceed.
ethics maybe there will be 3 faculties. Theory portion I will be taking, administrative ethics, that is aptitude and foundational values, administration, probity in governance, ethics in public administration would be taken by another faculty, and then there will be case study by the 3rd faculty. ऐसे का class हम week में एक class रखेंगे, so that it stretches over at least 5 weeks, so that you also get some time to write the essay and get the फीडबैक. ऐसे क्या होगा, 5 दिन में ऐसे खत्म कर देंगे, आपको भी नहीं समझ आएगा whether you have understood the demand or not. So let me just give you an idea that how we are intending to proceed. The first and foremost is ethics, and how we are going to make the intervention. Let me just tell you. Is everybody aware about the syllabus of ethics? इतना तो पता है सबको, ठीक है? There is a topic in your syllabus, emotional intelligence. Is everybody clear about it? ठीक है? Have you gone through the PYQs? You've gone through the PYQs, right? Have you ever done any kind of analysis of the PYQs? That what kind of questions UPSC is asking? देखो यार, एक simple सी बात है, intervention तो तब करेंगे ना जब पता हो कहाँ करना है. So when we were doing the analysis of PYQs, we got an idea that they are asking questions on emotions, and within emotions, they are asking questions on specific emotions. For example, let us say hatred. For example, let us say anger. For example, let us say happiness. These are already been asked. Now, this gives you an understanding. Next time, they might ask you greed. They might ask you jealousy. They might ask you joy, gratitude, love. That can be a possibility that they may ask you. ठीक है? That means एक clarity तो मिली ना, that you have to be prepared with emotion. ठीक है? So this is a basic understanding. Now the important aspect is, I have still not proceeded. Let us say you got the idea that these are the emotions on which there is a possibility of asking the question. But now how will you prepare? On the day of the examination, ऐसा नहीं है आपको hatred पता नहीं है, happiness पता नहीं है. But within 7 minutes, writing 150 words could be a challenge if we are not prepared beforehand. So at least I know that I will be prepared as what is hatred. I will be prepared with respect to the features of hatred as an emotion. Then implication, if you are experiencing this emotion, what is the implication at individual level? What is the implication at societal level? What is the implication at national level? And what is the implication at international level? Once we are done with it, we have to be prepared with examples, and finally, what needs to be done to overcome this emotion of hatred. Now, no matter what question they ask, we will have a definite content to answer the question. लेकिन अभी हमने सिर्फ बेसिक नोट्स बनाए. अब इसमें हमें करना था वैल्यू एडिशन. वैल्यू एडिशन के बेसिक 4 तरीके होते हैं. Either you give me good terminologies, you give me good examples, you give me good quotes, or you give me good diagrams. Is the content ready? But अभी भी काम खत्म नहीं हुआ. अब जाएंगे PYQ पे. हमने ये पूरा तैयार करा, फिर देखेंगे PYQ कैसा आया है. PYQ आया that hatred is an emotion which is disruptive of individual's wisdom and conscience, and it poisons the nation's spirit. Do you agree? Justify your answer. ये क्वेश्चन है. जब ये आंसर हो जाएगा, तब सर्टेनिटी है that the content is prepared. Is this very clear? अब हम कैसे प्रोसीड करेंगे? एक एक करके हर इमोशन तो क्लास में डिस्कस नहीं हो सकता. एक आध इमोशन क्लास में करा देंगे और बाकी सबका ऑन द सिमिलर लाइन वील प्रोवाइड यू द कंटेंट. क्योंकि इसमें कुछ कॉन्सेप्चुअली समझाने को तो
है नहीं. You also know what is happiness, you also know what is anger. All you need is good content. Is this very clear? We'll try to keep the language as simple as possible, examples as new and relatable as possible, so that you don't find it challenging to remember them. फिर भी कोई दिक्कत आएगी तो हम हैं. Is it making sense for everyone? ठीक है. जब एक बार ये चीज क्लियर हो गई, then second thing we observed, they are asking conceptual question on EI. In conceptual, they are asking what is EI, what is building blocks of EI, and third they are asking can it be learned, and finally they are asking questions with respect to application of EI. And mostly when they ask application, it is with respect to administration. अब आपके पास जो कंटेंट होगा, अगर आपने अपना फाउंडेशन कर रखा है, दिस कंटेंट वुड बी देयर विथ यू. You know what is EI, you know what is Daniel Goleman's perspective, building blocks of EI, you already know can it be learned or not. You might have also prepared what is the significance of EI in administration and specifically in context of Indian civil services. ठीक है, लेकिन हो सकता है ना इसके beyond भी application पूछ लें. For example, once they asked EI vis-a-vis crisis of conscience. Now how can you predict next time क्या पूछेंगे? So you have to be prepared how to apply EI, no matter which question is asked. Then your preparation is good to go. अब ऐसे में दो तरह के questions हम आपको देंगे. एक, we'll make you write PYQs, and second, based on PYQs. देखो यार, एक चीज है, ये मत मानना अगर हम कह रहे हैं ये question आ सकते हैं तो आ जाएंगे, ऐसा नहीं होता. ठीक है. And we'll just request कि ये sessions YouTube पे न जाएं कभी भी, क्योंकि फिर वही नहीं आएगा, ऐसा मुझे लग रहा है. क्योंकि जब पेपर चैट जीपीटी से बन रहा है तो मुझे लग रहा है आइडियाज भी यूट्यूब से ही बन रहे हैं. सो ऑल आई एम जस्ट ट्राइंग टू से इज दैट वील मेक श्योर two types of question. A, you solve the PYQs. Second, we'll give you the list of questions based on PYQs which you should practice. ये नहीं कहूंगी कि expected question, ये बहुत lame statement हो जाएगा, but you should practice. And this is how we are going to proceed. तो ethics में थोड़ी clarity दिख रही है कि कैसे पढ़ेंगे. ठीक है, दो तरह से कंटेंट देंगे. एक जो मुझे इंपॉर्टेंट लगता है वो मैं क्लास में पढ़ाते पढ़ाते डिक्टेट कराऊंगी. अच्छा, दूसरी चीज है, आई बिलीव इन मेकिंग हैंड रिटन नोट्स, क्योंकि जितना प्रिंटेड कम होगा उतना बेहतर है, बिकॉज अल्टीमेटली यू हैव टू रिप्रोड्यूस दैट. तो वो अगर आपके हाथ से लिखा हुआ होगा तो यू विल गेट द आइडिया. It would not be dictation. I'll discuss everything on the screen. You can simultaneously keep writing. Wherever you don't understand, you can ask and we'll make the intervention. थोड़ा आपको मुझे बताना पड़ेगा कि कितना बेसिक्स क्लियर है, क्योंकि हम कहीं ना कहीं थोड़ा मान के चलेंगे कि बेसिक्स आते हैं. नहीं आएगा कोई दिक्कत नहीं है, we'll मतलब हेल्प यू विद दैट. बट अगर कहीं नहीं समझ आए तो पूछ लेना, अदरवाइज थोड़ा हम अज्यूम करेंगे कि जो बेसिक ऑब्वियस कंटेंट है वो आपके पास होगा. इज इट वेरी क्लियर फॉर एवरीवन? यहां से प्रोसीड करें. ठीक है. The second portion where I'm going to teach you is इसमें थोड़ी मेहनत लगेगी, ये मैं पहले से बोल देती हूँ. एथिक्स के साथ दो अच्छी बातें थी. ए, द सिलेबस इज वेरी क्लीनली डिफाइंड. Emotional intelligence, attitude, moral thinkers, ethics and human interface, very cleanly they have defined what they are expecting you to prepare. बहुत अच्छे से. Society के साथ यही एक challenge है. Nowhere they have defined. They have just written salient feature. Impact of globalization, role of women and women organization. तो हमको नहीं पता कि किस हद तक हमें intervention करना है, तो यहां पे थोड़ी मेहनत ज्यादा आती है. दूसरा क्या है, एथिक्स के क्वेश्चन ओवर द इयर्स वी हैव नोटिस्ड आर नॉट डिफिकल्ट. द चैलेंज विथ एथिक्स पेपर इज दैट समटाइम्स आफ्टर राइटिंग द आंसर यू फील एज इफ यू हैव रिटन अ वेरी लेम आंसर. इट सीम्स एज अ वेरी जनरल आंसर. तो आपको खुद ही नहीं अच्छा लगता, आपको लगता है इस आंसर पे कौन ही मार्क्स देगा यार. जैसे उसमें अगर पूछ लिया कि सजेस्ट हाउ विल यू ओवरकम एंगर, आपने लिख दिया स्लीपिंग ओवर इट, मेडिटेशन,
फिजिकल एक्टिविटीज टू डिस्ट्रैक्ट। टू बी ऑनेस्ट आंसर गलत नहीं है, यही लिखना है, बट आपको कुछ बेटर वर्ड्स चाहिए थे। आपको थोड़ा बेटर वर्ड मिल जाता, थोड़ा आप भगवत गीता वगैरह डाल देते, थोड़ा आप गौतम बुद्ध की टीचिंग डाल देते, और वहीं आपका आंसर अच्छा लगने लगता। सोसाइटी में थोड़ा उल्टा हो रहा है। सोसाइटी में ओवर द years, in past 5 years, we are noticing the level of the questions are becoming more difficult. मतलब सोसाइटी इज कमिंग एट पार विथ सोशियोलॉजी एज द ऑप्शनल। कभी कभी सोशियोलॉजी ऑप्शनल में लेमैन क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं और सोसाइटी जीएस में दे आर आस्किंग डिफिकल्ट क्वेश्चन। जैसे उन्होंने पूछ लिया सेलियंस ऑफ सेक्ट, आधों को तो सेक्ट नहीं पता था, और फिर सेलियंस पूछ लिया तो सेलियंस नहीं पता था, और फिर सेक्ट का सेलियंस पूछा कास्ट, रीजन और रिलीजन, तो रिलीजन तो फिर भी समझ आ रहा था, कास्ट और रीजन से लिंक नहीं समझ आ रहा था। तो मैं क्रिप्टो करेंसी कौन पूछता है बे? तो मतलब तो पॉइंट हियर इज, ये मैं पहले क्लियर कर दूं, उन्होंने क्रिप्टो करेंसी पूछ लिया तो इसका मतलब ये नहीं है मैं पढ़ाऊंगी, वो इकोनॉमिक्स में पढ़ लेना। सो द पॉइंट विच आई एम ट्राइंग टू मेक हियर इज कि सोसाइटी का स्टैंडर्ड इज स्लाइटली इंक्रीजिंग, तो अकॉर्डिंगली वी विल ऑल्सो इंक्रीज आवर कंटेंट। ठीक है, तो अब इसमें हम कैसे प्रोसीड करेंगे? ए, आई विल डीकंस्ट्रक्ट द सिलेबस फॉर यू इन डिटेल। वी विल डू डिटेल्ड PYQ एनालिसिस। मैं दिखा भी देती हूं आपको अगर विजिबल हो रहा हो तो। पिछले 12 सालों में अप्रोक्सीमेटली 72 to 73 क्वेश्चंस हैव बीन आस्क्ड फ्रॉम सोसाइटी, ऑन एन एवरेज 6 क्वेश्चंस एवरी ईयर। ठीक है, मैं आपको एक क्लैरिटी दे देती हूँ। क्वेश्चन नंबर 8, 9, 10 एंड 18, 19, 20 usually these are from society, 3 10 markers and 3 15 markers. ठीक है, 15 markers usually is analytical questions, and जो वो 10 marker होते हैं वो अक्सर स्कीम वगैरह होती है, डेफिनेशन पूछ लेते हैं, जैसे स्मार्ट सिटी मिशन वगैरह पूछ लिया, या ट्राइबल्स के ऊपर कोई सवाल आ गया, तो डायरेक्ट क्वेश्चन द चांसेस आर देयर। ठीक है, सबसे हाई प्रायोरिटी एरिया इज दिस सेलिएंट फीचर ऑफ इंडियन सोसाइटी। पिछले 12 सालों में 18 सवाल हैं, मतलब ऑन एन एवरेज कभी 2 सवाल और कभी 1 सवाल। तो हियर वुड बी आर मैक्सिमम फोकस। जब पता है आ रहा है तो अकॉर्डिंगली वी विल पे द अटेंशन। दूसरा, एथिक्स में फिर भी लोगों का बेसिक कंटेंट प्रिपेयर्ड है, सोसाइटी बहुतों का बेसिक कंटेंट इज नॉट प्रिपेयर्ड, तो सोसाइटी में थोड़ा सा बेस भी प्रोवाइड करा देंगे सो दैट यू आर एबल टू राइट गुड आंसर्स। ठीक है, सेकेंड प्रायोरिटी इज योर विमेन। 13 सवाल, और अगर विमेन यहां नहीं पूछ रहे तो एथिक्स में पूछ रहे हैं, नहीं पूछ रहे तो GS2 में पूछ रहे हैं या एसए में पूछ रहे हैं। तो विमेन तो देखो यार पढ़ना ही पढ़ना है, वेदर यू वांट टू और नॉट। ठीक है, इसमें बस एक चीज कंपोनेंट इस बार ऐड करेंगे, हर बार करते हैं, पहले भी पूछते, बट इस बार जरूर पढ़ना है, प्लाइट ऑफ मेन, क्योंकि नाउ द वैल्यू सिस्टम इज अंडरगोइंग अ चेंज, तो मोर अलोंग विथ वुमेन इवन मेन ऑल्सो नीड्स प्रोटेक्शन। हम हमेशा करते थे, बट दिस टाइम वी हैव टू पे मोर अटेंशन टू इट। देन थर्ड पार्ट, पॉपुलेशन एंड एसोसिएटेड इश्यूज से यार 6 ही सवाल आए हैं, तो उतना इंपॉर्टेंट नहीं होता, लेकिन अगर आ जाए क्वेश्चन तो इट इज ROI, समझते हो, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट इज वेरी हाई, तो इसको स्कोर करना सबसे आसान है क्योंकि इसमें कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, तो इट इज वेरी इजी टू स्कोर, तो इसको पढ़ेंगे। बेसिकली मैं आपको कन्विंस कर दूंगी कि सब पढ़ना है। तो पॉवर्टी, अर्बनाइजेशन एंड डेवलपमेंटल इश्यूज यार इस बार इंपॉर्टेंट ज्यादा है। एक तो अर्बनाइजेशन, ये जो फायर इंसिडेंसेस हो रहे हैं, ठीक है, जो आपकी डेंसिटी ऑफ द पॉपुलेशन, अर्बन हीट आइलैंड हो गया, अर्बन फ्लडिंग का कॉन्सेप्ट हो गया, क्लाइमेट चेंज हो गया, इनइक्वालिटी इज ऑन द राइज, वेरी वेरी प्रोबेबल, नहीं सॉरी भगवान जी, नहीं प्रोबेबल नहीं बोल रही, मैं कह रही हूँ इंपॉर्टेंट टॉपिक इज कि अर्बनाइजेशन हैज टू बी डन। अब नाउ आई एम जस्ट आस्किंग, क्योंकि मुझे भी पता होना चाहिए ना जब मैं पढ़ाने आऊं तो मैं क्या, आपके पास अर्बनाइजेशन, आई एम जस्ट आस्किंग एज एन एग्जांपल, बेसिक कंटेंट इज देयर, व्हाट इज अर्बनाइजेशन, व्हाट आर द प्रॉब्लम्स एसोसिएटेड विद अर्बनाइजेशन, व्हाट नीड्स टू बी डन, ये बेसिक कंटेंट हमारे पास है अकॉर्डिंग टू द सिलेबस। अब इस पे हम वर्क अपॉन कैसे करेंगे, वी नीड गुड टर्मिनोलॉजीज टू राइट इन अर्बनाइजेशन, तो हम अर्बनाइजेशन के चैलेंजेस में अर्बनाइजेशन के प्रॉब्लम्स कैसे लिखेंगे, फॉर एग्जांपल स्प्लिंटरिंग अर्बनाइजेशन, for example islands of development, for example urbanization of poverty by Jan Breman, for example planet of slums by Mike Davis।
So are you understanding what we are trying to do here? You would know what is all these things. It's just that I'm going to give you the terminology which will मतलब aggravate the quality of your answer. फिर diagrams कहाँ डाल सकते हैं, कौन से thinkers हैं जो quote कर सकते हैं. देखो बहुत brief difference है पर समझो. Ethics का value addition होता है quotes, श्लोक, good examples. This is ethics का value addition. Society का value addition होता है data. सोसाइटी का वैल्यू एडिशन इज नॉट कोट्स, सोसाइटी का वैल्यू एडिशन इज थिंकर, सोसाइटी का वैल्यू एडिशन इज टर्मिनोलॉजी. यू शुड हैव अ गुड होल्ड ओवर टर्मिनोलॉजी. और वो दिन गए मैम जार्गन से, जब तक तुमको नहीं आता तभी तक जार्गन है, उसके अलावा वो जार्गन नहीं है. और ये सारे शब्द हिंदू में भी आते हैं और इंडियन एक्सप्रेस में आते हैं. बस प्रॉब्लम ये है हम दोनों नहीं पढ़ते. सो द प्रॉब्लम इज दैट एनीथिंग विच हैज कम इन द न्यूज़पेपर no longer is a jargon and it has to be written. तीसरा डिफरेंस है एथिक्स और सोसाइटी में. एथिक्स में केस स्टडी छोड़कर बहुत करंट नहीं पढ़ते. जैसे हो सकता है हमने जब अप्लाइड एथिक्स पढ़ा तो हमने करा रोल ऑफ एथिक्स इन एआई और हमें एक्सपेक्टेड भी था, वो पिछले साल आ भी गया. लेकिन अप्लाइड एथिक्स और केस स्टडी के अलावा करंट पे उतना फोकस नहीं होता. एग्जाम्पल्स वी कैन टेक फ्रॉम करंट, बट सोसाइटी एंड सोशल जस्टिस इज ऑल अबाउट current. तो you have to be very thorough with what is happening around. यहां पे कुछ चीजों का ध्यान रखना है. किसी के 10 साल, किसी के 20 साल, 25 साल, 50 साल, 200 साल. You have to remember. This time again I'm just making a case. ये मत समझना आ रहा है. बरसा मुंडा पे सवाल आने के चांसेस हैं. तो अगर ये नहीं पूछेंगे तो हो सकता है ट्राइबल रिवोल्ट पूछ लें. तो वो हिस्ट्री में भी पूछ सकते हैं, वो मूवमेंट्स एज अ टॉपिक भी पूछ सकते हैं, वो ट्राइबल्स भी पूछ सकते हैं, और वो एथिक्स में बरसा मुंडा की पर्सनालिटी पे सवाल पूछ सकते हैं कि व्हाट वर द टीचिंग्स और द वैल्यूज ऑफ बरसा मुंडा, व्हाट इज द कॉन्टेम्पररी रेलेवेंस. तो ये हम ज्योतिराव फूले, द प्रोबेबिलिटी ऑफ आस्किंग द क्वेश्चन इज वेरी हाई. डॉक्टर B.R. अंबेडकर, द प्रोबेबिलिटी ऑफ आस्किंग द क्वेश्चन इज वेरी हाई. पूछेंगे नहीं पूछेंगे आई कांट से, बट वी हैव टू बी प्रिपेयर्ड विद दिस. वैसे ही ट्राइबल्स इस बार प्रोबेबल टॉपिक बनता है. उसका रीजन है पेसा, FRA 20 साल हो रहे हैं, 30 साल हो रहे हैं. वेरी हाई प्रोबेबिलिटी ऑफ आस्किंग द क्वेश्चन. डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट, पर्सन विद डिसेबिलिटी, देखो प्रीलिम्स में आई गया. सो पर्सन विथ डिसेबिलिटी, चाइल्ड लेबर प्रोहिबिशन एक्ट, सबके 10 साल पूरे हो रहे हैं. द चांसेस ऑफ आस्किंग द क्वेश्चन इज वेरी हाई. कुछ चीजें होती हैं लोगों को लगता है 2015 में है. मैं आपको एग्जांपल देती हूँ. तो 2025 में आ जाना चाहिए था, 26 में कैसे 10 साल हुए. कभी कभी क्या होता है यार, एक्ट आ तो 15 में जाता है लेकिन वो गजट में 16 में आया होगा. ठीक है, वैसे ही 16 का एक्ट हो सकता है 17 में आया हो, तो वो एक आध साल का फेर चलता है. बट दीज आर द थिंग्स यू हैव टू बी प्रिपेयर्ड विद. कैसे पढ़ना है मैं सिखाऊंगी. ठीक है, जहां जहां कंटेंट देना है वो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है. बट इफ योर बेसिक्स आर नॉट क्लियर यू हैव टू आस्क मी. इफ सम एक्स्ट्रा वैल्यू एडिशन इज रिक्वायर्ड, जो आपको लग रहा हो कि इस कंटेंट के अलावा भी आपको चाहिए, यू हैव टू कम एंड आस्क अस. वील प्रोवाइड यू ऑल द कंटेंट. आप बस पढ़ लेना, आपका काम पढ़ना है. आप पढ़ो, जो पढ़ना है वो हम बताएंगे, जैसे पढ़ना है वो हम बताएंगे, कैसे लिखना है वो भी हम बताएंगे. आप बस पढ़ लेना. जैसे मैं एक बहुत अच्छी सी बात, अभी थोड़े दिन पहले एक स्टूडेंट से मिली, बड़ी नाइव सी, बड़ी प्यारी बच्ची. उसने आके मुझसे बोला, क्लास खत्म हुई, उसने बोला आके मुझसे बड़े इनोसेंट से पूछा, मैम आप तो ये बात हर साल बताती होंगी, तो सबका तो होता नहीं है, तो मैं ऐसा क्या करूं जो डिफरेंट हो और मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट में हो जाए. तो मैंने कहा बेटा बस एक चीज करनी है. मुझे बताइए मैम. मैंने कहा जो मैं बता रही हूं वो कर लो. उसने कहा मतलब. मैंने कहा कोई कर नहीं रहा है, जो करता है मे बी शायद इट इज वर्किंग फॉर देम. तो बहुत बार, और ऐसा नहीं आप करना नहीं चाहते हो, इट्स जस्ट दैट वो 2-4 क्लास के बाद जोश ठंडा हो जाता है. तो वो भी एक बहुत बेसिक सा प्रॉब्लम है, और कंटेंट बहुत ज़्यादा है. इसीलिए इस बार हम एक प्रोग्राम दे रहे हैं जिसमें चारों GS भी आ जाए, ऐसे भी आ जाए. तो अब बस ऑप्शनल की जिम्मेदारी आपकी. हाँ, ऑप्शनल से भी रिलेटेड कोई डाउट है और हमारा वो ऑप्शनल है, तो आप वो हमसे आके सोशियोलॉजी के बारे में कोई ज्ञान देना आ जाना. लेकिन उसके अलावा मेरा और कोई ऑप्शनल नहीं है. पब एड तो मत ही पूछना, एक्सपीरियंस बहुत खराब था मेरा, तो मैं आप डिमोटिवेट ही कर दूंगी आपको. सो हैविंग सेड दैट, डिड वी अंडरस्टैंड हाउ वी आर गोइंग टू प्रोसीड? ठीक है, सो यू आर गेटिंग एन आइडिया. ठीक है, एंड फाइनल द लास्ट थिंग विच आई एम गोइंग टू टीच.
अच्छा एक चीज मुझे बताना, इज मेंस 365 इनकॉर्पोरेटेड इन दिस कोर्स? मेंस 365 नहीं है, ठीक है, तो फिर आई विल मेक श्योर दैट हम करंट यहीं कवर कर लें, कि अगर मेंस 365 का कुछ रह जाएगा जो मुझे लगता है इंपॉर्टेंट है तो मैं इसी क्लास में आपको करा दूंगी, ठीक है। चलो नेक्स्ट, द लास्ट इंटरवेंशन जो मेरे हिसाब से सबसे इंपॉर्टेंट है, दैट इज गोइंग टू बी ऐसे एवरी वीक 1 क्लास। इसका भी आई विल प्रोवाइड यू, अभी जो भी मैंने डॉक्यूमेंट आपको एज अ रेफरेंस दिया मैं सब प्रोवाइड करा दूंगी। इसमें देर आर 2 अप्रोचेस, एवरीवन नोज, वन इज इशू बेस्ड ऐसे एंड सेकंड इज योर फिलोसॉफिकल ऐसे। देखो यार, ऐसा नहीं है कि फिलोसॉफिकल करने के चक्कर में इशू को इग्नोर कर देंगे, यूपीएससी कभी भी पलट सकता है, ठीक है। फोकस वुड बी ऑन फिलोसॉफिकल, बट इशू बेस्ड का कंटेंट वी विल डिस्कस। क्यों? इशू बेस्ड में देर आर 4-5 इश्यूज जो थीम्स हैं वो बहुत कॉमनली आस्क्ड है। सबसे ज्यादा पूछा जाता है मीडिया, टेक्नोलॉजी, डिजिटल सोसाइटी, उसके बाद आता है विमेन एंड जेंडर इक्वालिटी, उसके बाद आता है पावर्टी, इकोनॉमिक इश्यूज, उसके बाद आता है इन्वायरमेंट, क्लाइमेट चेंज एंड सस्टेनेबिलिटी, फिर आता है एजुकेशन। ये सबसे इंपॉर्टेंट थीम्स हैं। एटलीस्ट हमारे पास बेसिक कंटेंट होना चाहिए कि अगर एग्जाम में आ गया तो वी हैव समथिंग टू राइट। एक तो ये हो गया, लेकिन अब फिलोसॉफिकल कैसे तैयार करें? देखो एक सिंपल सी बात है, मैं पहले क्लियर कर दूं, फिलोसॉफिकल कोट्स हम प्रिडिक्ट नहीं कर सकते, बट हम थीम्स प्रिडिक्ट कर सकते हैं। और ये मेरा अपना एनालिसिस है इतने दिनों का, इतने सालों का, कि एक्चुअली थीम्स प्रिडिक्टेड है। सबसे कॉमन थीम इज माइंड, सेल्फ कॉन्शियस, वो जो इनर सेल्फ होता है उस पे सबसे ज्यादा एसेज आए हैं। दूसरी जो सबसे कॉमन थीम है रिस्क, करेज, एक्शन, इनएक्शन, दिस इज सेकंड मोस्ट कॉमन थीम। द थर्ड मोस्ट कॉमन थीम इज एथिक्स, वैल्यूज एंड ह्यूमन कैरेक्टर। And then you have the themes, other themes, for example, truth, knowledge, science, reason, wisdom. This is one theme. Chances of asking the philosophical topic is very high. ऐसे हमने 6 themes identify कर ली हैं। हर थीम पे हम क्या करेंगे, आपको एक लिस्ट ऑफ कंटेंट देंगे। फिलोसॉफिकल के लिए बता रही हूँ, हर एक थीम पे कौन से पर्सपेक्टिव्स लिख सकते हो, कौन से एनेक्डोट्स लिख सकते हो, कौन से कोट्स लिख सकते हो, कौन से एग्जाम्पल्स दे सकते हो, कैसे इंट्रोडक्शन लिख सकते हो, कैसे कंक्लूजन लिख सकते हो। बट ये हम इसलिए नहीं देंगे कि आप ब्लाइंडली कॉपी कर लो, ये सिर्फ इसलिए दिया जाएगा कि आप जो एफर्ट मारते कंटेंट कलेक्ट करने में वो आपको करने की जरूरत नहीं पड़े। तो अब कैसे, ऐसे की 5 क्लासेस होंगी। पहली 2 क्लासेस या 1.5 क्लास मान लेते हैं, आई विल बी डिस्कसिंग द निटी ग्रिटीज ऑफ द राइटिंग पार्ट, क्योंकि बहुत बार होता है बहुत सारे कंफ्यूजन्स हैं। वंस एंड फॉर ऑल हम सारे कंफ्यूजन्स क्लियर कर देंगे। तो फर्स्ट 1.5 लेक्चर्स वुड बी ऑल अबाउट हाउ टू राइट द एसे। After that 1.5 lecture, we'll start with the actual exercise of brainstorming, कि कैसे टॉपिक को ब्रेनस्टॉर्म करना। यही तो चैलेंज है ना, कि मैम टॉपिक देख के समझ नहीं आता कैसे लिखें, सबसे बेसिक प्रॉब्लम है। फिर अगर लिखने बैठते हैं तो 500 वर्ड्स के बियॉन्ड जा नहीं पा रहे होते हैं। फिर ऐसा लगता है कि थोड़ा सा रेपिटेटिव कंटेंट हो गया है, थोड़ा सा मेन थीम से डाइग्रेस कर गया। ये सारी हमारी प्रॉब्लम है। बस आपका एक काम है, जो सिखा रहे हैं वो लिखना, जिससे कि जब लिखोगे ना, स्टीफन किंग कहते थे आई राइट टू नो व्हाट आई थिंक। तो जब आप लिखोगे ना, तब आपको ऐसे क्या होता है, जब आप फ्रेमवर्क बनाते हो, अच्छा इसमें इंट्रो में ये डाल देंगे, बॉडी में ये कर देंगे, कंक्लूजन में ये तो आंसर हो गया। लेकिन जब लिखने बैठे तो इंट्रो ही आधे पेज का हो गया, अब बॉडी के लिए जगह नहीं बची और बिना कंक्लूजन के आंसर खत्म हो गया। तब पहली बार सीखोगे कि पैराग्राफ राइटिंग नहीं करनी, जीएस में पॉइंटर्स में लिखना है। पॉइंटर्स में हर पॉइंट में एग्जाम्पल डेटा देना जरूरी है। ज्यादा पॉइंट्स लिखने पे क्या ज्यादा मार्क्स मिल रहे हैं, और एनालिटिकल क्वेश्चन को क्या पॉइंटर्स में ये सब कब सीखोगे, जब लिखोगे। वैसे ही जब ऐसे लिखोगे ना, देन यू विल अंडरस्टैंड व्हाट इज वर्किंग फॉर यू एंड व्हाट इज नॉट वर्किंग फॉर यू। इज दैट वेरी क्लियर? ठीक है, मैं एक एग्जाम्पल देके आपको दिखा देती हूँ, सो दैट यू विल गेट सम कॉन्फिडेंस। This is the overall analysis. We'll get this uploaded on your platform. This is the overall analysis that how different issue-based topics are asked. So, ये तो issue-based हो गया. Let me show you the philosophical. You will get more confidence here. देखो,
पहला, inner self, mind, self, wisdom, consciousness. Now just see the topics. Is it fitting the bill? Muddy water is best cleared by leaving it alone. It is best to see life as a journey, not as a destination. Contentment is natural wealth. Luxury is artificial poverty. Best lessons are learned through bitter experiences. Did you get the point? Similarly, there is no path to happiness. Happiness is the path. All ideas having large consequences are always simple. Are you getting the point? तो अगर आप रियलाइज, और हर साल आया है, तो जब पता है कि ये थीम आ रही है तो थीम तैयार कर लेते। देखो टॉपिक मैं नहीं बता सकती, ये मैं अभी भी कह रही हूं, लेकिन हाँ मैं ये प्रिडिक्ट कर सकती हूं कि ये 4-5 इंपॉर्टेंट थीम्स हैं, ये कर लो, 2 तो फंसी जाएंगी। दैट इज गिवन थिंग, ठीक है। सिमिलरली रिस्क, करेज, एक्शन, इन एक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। द कॉस्ट ऑफ बीइंग रॉन्ग इज लेस देन कॉस्ट ऑफ डूइंग नथिंग। नियरली ऑल men can stand adversity, but to test the character give them power. A ship in harbor is safe, but that is not what a ship is for. The time to repair the roof is when sun is shining. Are you understanding that these are courage to accept and dedication to improve are 2 keys to success. अब अगर आपको, एक सेकेंड, अगर आपको ये क्लैरिटी है कि इस टॉपिक से सवाल आ रहे हैं, तो इस थीम पर इफ वी प्रिपेयर दीज फिलॉसफीज, कि अगर ये क्वेश्चन आए तो दीज फिलॉसफीज कैन बी कोटेड इन द कंटेंट, ठीक है। कैसे कोट करना है, ये इंडिविजुअल स्ट्रेंथ होती है, और ये कोई मैंडेटरी नहीं होता दैट यू हैव टू कोट दैट, बट इट्स जस्ट दैट टू अकेडमिकली एनरिच योर आंसर यू शुड हैव दैट क्लैरिटी। जब आपको पता है ये फिलॉसफीज हो सकती हैं, देन वी कैन स्टार्ट विथ सर्टन कोटेशंस। देखो यार, कोटेशंस याद करनी पड़ेंगी। मैं बहुत बार बोल देती थी कि नहीं हो पा रहा है तो छोड़ दो, मत करो, बट यूजुअली मैं यही एडवाइस करती हूँ, व्हाई लीव एनी स्टोन अनटर्न्ड। जितना पढ़ेंगे, जितना कर सकते अपनी तरफ से। देखो यार, मैं फिर वही बात कहूंगी, मेंस लिखने का मौका अपने आप में एक ब्लेसिंग है, क्योंकि जो हालात प्री के चल रहे हैं, दोबारा कब क्लियर होगा इसकी कोई गारंटी नहीं है। तो जिस साल प्री क्लियर हो रहा है उसी साल मेंस निकाल लो, ये बेस्ट अपॉर्चुनिटी होती है। और आप पिछले उठा के भी देख लो, जिन टॉपर्स का तीसरे, चौथे, 5वें अटेम्प्ट में हुआ, अक्सर उनके पहले अटेम्प्ट्स में प्री ही नहीं होता था, और जैसे ही प्री हुआ दे हैव गॉट द रैंक। सो मेंस तो एक्चुअली आपकी नॉलेज पे टेस्ट करेगा। प्री तो कई बार ऐसा होता है नॉलेज का टेस्ट है ही नहीं, समटाइम्स तो it is actually a gamble, we all know that, we have suffered that, but mains is actually a test of your knowledge। और जो लोग बोलते हैं ना कि हमने आंसर, मैं इंक्लूडिंग माई सेल्फ, कि अगर मैं आज कितना भी बोल दूं कि मैंने तो अपना बेस्ट दिया था, नहीं हुआ, यूपीएससी में सब्जेक्टिविटी, अरे यार हैंड्स ऑन योर हार्ट, आपको पता होता है कि उतना एफर्ट नहीं मारा था। तो एफर्ट मारोगे तो यू विल गेट द रिजल्ट। बहुत बच्चे होते हैं बहुत एफर्ट मारते हैं फिर भी नहीं होता, क्योंकि कभी कभी एफर्ट्स आर मेड इन द रॉन्ग डायरेक्शन। So not hard work is required, थोड़ा सा smart and diligent work is required. Is that clear? आपके पास सारी quotations होंगी, इसके बाद हम आपको सारे examples provide करा देंगे जितना हमें लगता है, और हम कोशिश यही करेंगे थोड़े relatable examples रखें जिससे कि आपको भी चीजें याद हो पाए। And why we are giving you the list? Just to give you the option. Otherwise इस बार वो जो डेस्टिनी और जर्नी वाला था ना, कि लाइफ शुड बी ट्रीटेड एज अ जर्नी नॉट एज अ डेस्टिनेशन, अनफॉर्चुनेटली मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स हु हैव रिटन द एसे ऑन दिस हैव नॉट क्रॉस्ड डबल डिजिट मार्क्स। The same happened few years back when that combination was answered. The ship is safe in the harbor, and second was the roof should be repaired when sun is shining. ये combination भी जिसने attempt किया था तो double digit में marks थे। अब 2 सवाल आते हैं, हमें कैसे पता चलेगा कि सब लोग इसी टॉपिक पे कर रहे हैं? भाई देखो, विमेन वगैरह आता है तो एक आइडिया लग जाता है कि हर कोई शायद इस पे लिख रहा हो, और ये सोच के कोई नहीं लिखता, तो जो लिख लेता है उसको नंबर मिल जाते हैं। बट फिलोसफिकल में ये कैसे प्रिडिक्ट करेंगे? और इस बार तो मोस्टली टॉपिक्स आते भी थे, ऐसा थोड़ी ना था बस यही टॉपिक समझ आ रहा था, ऐसा कुछ नहीं करना। पर रिस्क नहीं ले सकते तो एग्जाम्पल्स कॉमन नहीं लिखोगे। आप जब हर ऐसे का एनेक्डोट गौतम बुद्ध से शुरू करते हो,
या आप अर्जुन की स्टोरी फ्रॉम महाभारत से शुरू करते हो, या आप महात्मा गांधी से शुरू करते हो। ऐसा थोड़ी ना है कि आप गलत लिख रहे हो, पर उसकी भी तो सोचो कितना पढ़ेगा वो। उसके सामने 100 कॉपी आई, 100 में 80 ने यही टॉपिक लिखा था और 80 के 80 ने गौतम बुद्ध से शुरू करा था। लाइफ शुड बी ट्रीटेड एज अ जर्नी एंड नॉट एज अ डेस्टिनेशन। और सबने गौतम बुद्ध की सेम स्टोरी, उसको याद हो गया, सपने में उसको गौतम बुद्ध आ रहे थे, एनलाइटनमेंट अचीव्ड। So the point which I'm trying to make here is we will come up with new examples. But देखो इस पे आप totally सिर्फ हम पे rely नहीं करोगे, क्योंकि सबके अपने एरियाज ऑफ इंटरेस्ट होते हैं। जिसको बुक्स पढ़ने का शौक हो वो लिटरेचर कोट कर सकता है, जिसके ऑप्शनल ह्यूमैनिटीज हो वो ह्यूमैनिटीज की थ्योरीज एंड पर्सपेक्टिव यूज कर सकता है। फिलोसफी ऑप्शनल तो बहुत अच्छा है, फॉर दैट मैटर पॉलिटिकल साइंस, सोशियोलॉजी बहुत अच्छा है फॉर एसे राइटिंग। तो आप अपने ऑप्शनल्स को बिंदास यूज कर सकते हो, बट डोंट मेक इट वेरी एविडेंट। जिसको न्यूज़पेपर रीडिंग का बहुत अच्छा शौक है तो प्लीज न्यूज़पेपर से बहुत अच्छा कंटेंट मिल जाता है। इंडियन एक्सप्रेस स्पेसिफिकली आजकल वो अपने आर्टिकल्स को टिल्ट कर रहे हैं, कीपिंग इन माइंड द एक्सपेक्टेशन ऑफ यूपीएससी, तो आप उस तरह से उसको ले सकते हो। एक डाउन टू अर्थ करके है, दैट ऑल्सो गिव्स यू गुड कॉन्टेंट फॉर जीएस। So if possible, not every article, but if you see there is an overlap with your syllabus, please you can read that article. बहुत नहीं भी पढ़ पा रहे हो तो स्क्रीनशॉट खींच के AI का यूज करके 4 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स निकाल के लिख सकते हो, अगर पूरा पूरा आर्टिकल पढ़ने के आपके पास टाइम नहीं है। हम कोशिश करेंगे हम अपनी तरफ से दें, लेकिन कुछ तो आपको भी मेहनत करनी पड़ेगी। इज इट वेरी क्लियर? नाउ लेट मी गिव यू अ वेरी ब्रीफ आइडिया। समझ आया कि मैं कहाँ कहाँ इंटरवीन कर रही हूँ एंड हाउ द क्लासेस विल बी गोइंग अबाउट। एक लास्ट चीज़ है कि मेंस एज में हम 2-3 चीज़ें आपको प्रोवाइड कराएंगे। एक तो लेक्चर्स चलेंगे, रोज़ 2 लेक्चर्स हैं, एंड वील मेक श्योर 2 डिफरेंट फैकल्टीज हो जब जब पॉसिबल होगा। एक को कितना ही झेलोगे, ठीक है? तो वील ट्राई टू, 5 आवर्स का लेक्चर होगा, 2.5 एंड 2.5, दैट्स वन थिंग। सेकेंड, हर क्लास में एक वर्कबुक दी जाएगी एंड दैट वर्कबुक विल हैव 7 क्वेश्चंस। उसमें से 1 क्वेश्चन वुड बी द असाइनमेंट क्वेश्चन जो आपको लिख के सबमिट करना है, एंड दैट विल बी इवैल्यूएटेड। रिमेनिंग 6 वुड बी सेल्फ टेस्ट, but that does not mean that you will not get the input. Let us say you've written the answer, you want the input, come and show it to us, we'll give you the input. ठीक है? Third thing, from 8 a.m. to 8 p.m. we will assign a dedicated space to all of you guys. You can come, you can write your answers, you can write the PYQs, you can practice mocks, whatever you want to do. You can come. कभी कभी होता है ना कमरे पे बैठ के पढ़ाई नहीं हो रही, कोई बात नहीं, यहाँ आ जाओ, ठीक है ना? बिल भी बहुत आ रहा है इसी का, मस्त यहाँ हो, पढ़ाई करो। ये करो। एक मेंटर डेडिकेटेड आपको प्रोवाइड कराया जाएगा, ठीक है? वो वहीं पर होंगे। आपको कोई भी डाउट हो आपको उनसे पूछना है। देखो एक चीज समझना है, हम आप पर नहीं आएंगे, हमारा जो काम है वो हम आपको यहाँ पे करके देंगे, ठीक है? हम जा जाके नहीं पूछेंगे समझ आया समझ आया समझ आएगा, कहेगा बावली हो गई, कितनी बार पूछेंगे, नहीं, ये नहीं करेंगे। हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश करेंगे समझाने की। आपको कुछ नहीं समझ आए, प्लीज रीच आउट टू अस। देयर विल बी अ मेंटर, देयर विल बी अ फैकल्टी, देयर विल बी अ एंटायर टीम टू हेल्प यू आउट। यू जस्ट नीड टू रीच आउट टू अस। इज दैट वेरी क्लियर? ठीक है? एंड बिफोर आई कंक्लूड दिस ओरिएंटेशन सेशन, द लास्ट थिंग आई जस्ट वांट टू शेयर एन इंसिडेंट. I happened to interact with a very good friend of mine after 16 years. And this friend of mine was the first friend I made in UPSC journey. Then she got selected, she got busy, I got busy with my life. So after 16 years, she got hold of my number. Basically, she is a friend जिसके बारे में मैं अपने हर open session में बात कर चुकी हूँ, ठीक है? तो उसकी एक कहानी फिर से याद आ गई, ठीक? तो just for the background check, उस दिन उससे बात करते करते याद आ गया कि हम क्या बातें किया करते थे। तो she is graduate from SRCC, economics graduate, and post-graduate from Delhi School of Economics, again in economics. थोड़ा background clear हो रहा है, ठीक है? First attempt she qualified the exam, उसका optional economics था, and she was the highest scorer that year, 320. तो अब और बताने की जरूरत है, economics background अच्छा था। अच्छा, first attempt में Indian Economic Services भी qualified है, पर उसने join फिर civil services किया। और clear है सब? ठीक। फिर हम एक GS की कोचिंग करा करते थे साथ में, वहाँ पे इकोनॉमिक्स के लेक्चर्स होते थे और वो बंदी हर लेक्चर अटेंड करने आती थी। एक दिन मैंने आउट ऑफ क्यूरोसिटी पूछ ही लिया, मैंने कहा यार एक बात बताओ, तुम हो मास्टर्स फ्रॉम दिल्ली स्कूल, तुमको नहीं लगता योर अंडरस्टैंडिंग ऑफ इकोनॉमिक्स इज वे बियॉन्ड व्हाट इज बीइंग टॉट इन द क्लास? बिकॉज व्हाट इज बीइंग टॉट इन द क्लास इज टॉट फ्रॉम GS पॉइंट ऑफ व्यू,
which would be very less as compared to what is required in optional and what you have studied in masters. So then I genuinely asked her out of concern, why do you attend every lecture? She said, Smriti, I agree with you that maybe the knowledge of economics which I have is more than what is required in GS. But I am 110% sure that faculty knows more than me what UPSC requires. I will come and attend every class. किस क्लास में एक नया कॉन्सेप्ट मिल जाए, किस में एक नई स्किल मिल जाए, एक कोई डाउट ही क्लियर हो जाए, और वैसे भी कमरे में बैठ के मैं कौन से ही झंडे गाड़ रही थी. तो 2 घंटा यहां आके पढ़ लोगे तो आपको समझ आ रहा है मैं क्या कहना चाह रही हूं. देखो मुझे पता है क्या होता है, पहले 3-4 दिन जोश रहता है, बहुत हुआ हफ्ते भर का जोश होगा, उसके बाद ठन ठन गोपाल, फिर आप पिक एंड चूज करोगे, ये वाला सब्जेक्ट कर लेते हैं, ये वाला रहने देते हैं. ऐसे नहीं चलेगा. वी हैव टू एक्सेल इन. सोचो सोसाइटी में नंबर आ गए, हिस्ट्री ज्योग्राफी में नहीं आए, हिस्ट्री में आ गए, ज्योग्राफी सोसाइटी में नहीं आए, पूरा तो नंबर खराब ही हो गया ना. जीएस पेपर 1 में अगर 110 115 लाने हैं तो ऑल द 3 सेक्शंस हैव टू बी एक्सेल्ड. तो यार एक चीज है, this exam is not qualified on the basis of your intelligence. It will never be qualified on the basis of one brilliant day. It is qualified only on the basis of normal days which are executed with consistency. All I expect you people is to be consistent. हम अपना 200% देंगे, आपको अपना 200% देना है, आपका attempt है. Is it very clear for everyone? We are going to meet on 15th of June. From 11 AM we are going to start with ethics. इस प्रोग्राम को लेके कोई डाउट है? अब क्लैरिटी मिल रही है क्या करेंगे? ठीक है, आपको लिस्ट ऑफ फैकल्टीज का आइडिया हो चुका है. ठीक है, आपको शेड्यूल भी हम पहले से ही दे देंगे. हाउ द क्लासेस, एक्चुअली वी वर सपोज टू स्टार्ट टुडे, बट बहुत कॉल्स आए बिकॉज ऑफ द रिजल्ट. तो बच्चे तो हमने कहा भी कि आके अटेंड कर लो, बट दे वर लाइक कि हुआ नहीं यार. बहुत स्ट्रेस तो होता ही है ना यार रिजल्ट का, वो अभी तुम लोग का भी शायद पढ़ने में उतना मन नहीं लगेगा. एंड वी आर एक्सपेक्टिंग कि 1-2 दिन में रिजल्ट आ जाएगा. ठीक है, तो वील स्टार्ट विथ 15, बट तब तक आपका असाइनमेंट है. आप लोग क्या कर रहे हो आजकल? ऑप्शनल, वेरी गुड. ट्राई टू कवर योर ऑप्शनल, और ऑप्शनल में भी आंसर राइटिंग करते रहना. एक चीज जो एक दिन भी मत छोड़ना, न्यूज़पेपर रीडिंग. आप कोई भी न्यूज़पेपर पढ़ सकते हो. आई वुड प्रेफर इंडियन एक्सप्रेस. बाकी आपको जो पढ़ना है आप पढ़ो, लेकिन इंडियन एक्सप्रेस ना थोड़ा रिलेटेबल कंटेंट दे रहा है. चांसेस ऑफ आस्किंग इन यूपीएससी इज वेरी हाई. तो इसलिए केवल वो जो कहते हैं ना आरओआई की वजह से, तो एक वो आपको करना है. दूसरा एक काम करते हैं, पहला टॉपिक बता देती हूँ, ह्यूमन वैल्यूज से शुरू करेंगे. ठीक है, तो एथिक्स एंड ह्यूमन इंटरफेस में एक टॉपिक है ह्यूमन वैल्यूज. वील स्टार्ट विथ ह्यूमन वैल्यूज. अगर कोई भी डाउट हो, कुछ हो, तो आप वो भी ला सकते हो अपने नोट्स में से. अगर आपको कुछ स्पेसिफिक इंटरवेंशन चाहिए हो, प्लीज लेट मी नो. ठीक है, तो आज के लिए ओरिएंटेशन यहीं खत्म करते हैं. एंड आई विल सी ऑल ऑफ यू ऑन 15, एंड आई वांट टू सी यू टिल द एंड ऑफ द क्लासेस. नो मिसिंग ऑफ लेक्चर्स, नो मिसिंग ऑफ आंसर राइटिंग. डीमोटिवेशन हो उसके लिए भी हम लोग हैं, उसमें तो मैं एक्सपर्ट हूँ. So if you ever feel demotivated, please come to me. I'll give you the right kind of motivation. क्योंकि मेरी लाइफ में इतने कांड हुए हैं ना कि अब मुझे पता है हर कैसे कांड को कैसे ओवरकम करना है. बट आंसर राइटिंग करनी है, वो भी मैं इतनी ढीठ हूँ कि मैं करवाई दूंगी. तो चलो, बाय पीपल.